Good morning, children. Today in this video, we will learn about the chapter My Dearest Lizzie. My Dearest Lizzie, the chapter is written by Jane Austen, who was born in 1775 and died in 1870. She was an English novelist. She is one of the most well-known writers in English literature. ये हमें पता होना चाहिए कि जेन ऑस्टन जो थी वो बहुत जानी पहचानी इंग्लिश लिटरेचर की राइटर रह चुके हैं. Austen was educated at home and lived a secluded life. ऑस्टिन जो थी उनके घर पे ही पढ़ाई लिखाई हुई है. उन्होंने बड़ी लोनली लाइफ स्पेंड की, लोनली प्राइवेट लाइफ. उस टाइम में most of the children didn't go to the school. She wrote and published her novel anonymously. Anonymous means unremarkable. उन्होंने अपनी नॉवेल्स को नॉर्मली लिखा और पब्लिश किया. शी रोट अबाउट द क्वाइट लाइफ ऑफ स्मॉल इंग्लिश टाउन्स एंड विलेजेस. जिस तरह के माहौल में उनका बचपन निकला उसी तरह की उनकी स्टोरीज थी. क्वाइट लाइफ ऑफ स्मॉल इंग्लिश टाउन्स एंड विलेजेस. Now before learning the story, let's read about the character sketch. The character involved with the story. The story is about the Bennet family, in which Mr. Bennet, including Mr. Bennet and Mrs. Bennet, they had 5 daughters. Jane was the elder one, then Elizabeth, Mary, Catherine and Lydia. Another characters are Mr. Charles Bingley, who had 2 sisters, Caroline Bingley and Georgina Darcy. And Caroline Bingley was married to Mr. Hurst, husband of Caroline. Now, Mr. Charles Bingley had a fast friend whose name was Mr. Darcy, best friend of Charles. So, these are the characters involved in the story. Let's read about the introduction first. This is an extract from Jane Austen's novel Pride and Prejudice. अब ये जो चैप्टर है ये लिया गया है जेन ऑस्टन की नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब वाइज. उन नॉवल से ही लिया गया एक पार्ट विच इज़ अबाउट द स्पिरिटेड बेनेट फैमिली, जो बेनेट फैमिली के बारे में है. मिसेस बेनेट इज़ ऑब्सेस्ड विद फाइंडिंग सुटेबल हस्बैंड्स फॉर ऑल हर 5 डॉटर्स. इस स्टोरी में जो मिसेस बेनेट हैं वो बहुत एम्बिशियस है कि उनकी बेटियों के लिए उनको अच्छे अच्छे हस्बैंड्स मिल जाए. When a wealthy young man, Charles Bingley, takes a house nearby, Mrs. Bennet is overjoyed. और जब एक बहुत अमीर young man, rich young man, Charles Bingley, that I told you in the beginning, Mr. Charles Bingley came to live nearby, then Mrs. Bennet is overjoyed. She felt very happy. Her eldest daughter Jane succeeds in impressing Mr. Bingley. Now her eldest daughter Jane impressed Mr. Bingley. She is invited to his place at Netherlands. There she falls ill and sends a letter to her family. जहाँ अब जेन को मिस्टर बिंगले इनवाइट करते हैं अपने घर पे, और जब वो जाती है तो वहाँ पर वो बीमार पड़ जाती है और उसके बाद वो वहीं से अपनी फैमिली को एक लेटर लिखती है. Now let's read in the chapter what happens in the story. Jane had not been gone long before it rained hard. अब जेन जब मिस्टर बिंगले के घर जाती है तब बारिश नहीं थी. हर सिस्टर वर अनईजी फॉर हर बट हर मदर वॉज डिलाइटेड. उसकी जो सिस्टर्स थी वो उसके लिए बहुत परेशान थी, वरिड थी, बट मदर वॉज डिलाइटेड. द रेन कंटिन्यूड द होल इवनिंग विदाउट इंटरमिशन. Students, here I am underlining few words for you. Okay, so you should keep in mind these words. I will ask you. This is the word intermission. Okay. The rain continued the whole evening without intermission. पूरी शाम को बारिश होती रही बिना किसी रुकावट, इंटरमिशन बिना किसी ब्रेक के. जेन सर्टेनली कुडंट कम बैक. जेन का पक्का था कि वो वापस नहीं आ पाएगी. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई उसके सिस्टर्स वरिड क्यों थे उसके लिए, बट मदर खुश क्यों थी. लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द आंसर्स.
This was a lucky idea of mine, indeed, said Mrs. Bennet more than once, as if the credit of making it rain were all her own. मिसेस बेनेट कहती हैं कि ये मेरा जो लकी आइडिया था, आफ्टर ऑल इट वर्कड, ये श्योर मेरा ही आइडिया था। वो एक बार नहीं, उन्होंने ये बात कई बार की, जैसे कि बारिश होने का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। Till the next morning, however, she was not aware of all the felicity of her contrivance. Till the next morning. Next morning तक भी Mrs. Bennet was not aware of felicity of her contrivance means the positive result of her arrangement of the situation. अब ये सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी कि जेन को मिस्टर बिंगले के घर भेज दिया था और सुबह मॉर्निंग तक भी उनको ये नहीं पता था कि उनका जो प्लान था कितना सक्सेसफुल हुआ। Breakfast was scarcely over when a servant from Netherlands brought the following note for Elizabeth. अभी उनका ब्रेकफास्ट हार्डली ओवर हुआ था। नाउ द वन मोर वर्ड इज हेयर, स्कार्सली, कि तभी नीदरफील्ड जहाँ पर मिस्टर बिंगले रह रहे थे, उन्होंने जब उनका ब्रेकफास्ट ओवर भी नहीं हुआ था तो उन्होंने एक नोट भेजा एलिजाबेथ के लिए। I find myself very unwell this morning, which I suppose is to be imputed to my getting wet through yesterday. Now imputed to means caused by, due to, that means I find my, अब उसको नोट क्या था एलिजाबेथ के लिए जो था उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने देखा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो कि कल मेरे भीगने की वजह से हुई है। My kind friends will not hear of my returning till I am better. मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को मिस्टर बिंगले एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, वो नहीं चाहते कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती वापस आऊँ। They insist also on my seeing Mr. Jones. Therefore, do not be alarmed if you should hear of his having been to me, and accepting a sore throat and headache, there is not much the matter with me, yours, etc. अब उस पूरे लेटर में ये लिखती है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे वापस आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने मिस्टर जॉन्स इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने मिस्टर जॉन्स को भी बुलाया है मुझे देखने के लिए, इसलिए डू नॉट बी अलार्म्ड मीन्स डोंट गेट फ्राइटेंड, डरने की कोई बात नहीं है। और अगर वो मुझे आ रहे हैं देखने के लिए, अब मुझे प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ मेरा गला ख़राब है और सिर दर्द है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वेल माई डियर, सेड मिस्टर बेनेट, when Elizabeth had read the note aloud, if your daughter should have a dangerous fit of illness, if she should die, it would be a comfort to know that it was all in pursuit of Mr. Bingley and under your orders. In pursuit of का मीनिंग यहाँ पे मिस्टर बिंगले, to make him interested in marrying her. यस, अब वो मिस्टर बेनेट जो हैं, जब ये लेटर सुनते तो वो कमेंट्स पास करने लगते हैं मिसेस बेनेट के लिए कि तुम्हारी डॉटर्स खतरे में है, कहीं वो मर तो नहीं जाएगी। इट वुड बी कम्फर्ट टू नो दैट इट वॉज ऑल इन परसुएट ऑफ मिस्टर बिंगले एंड अंडर योर ऑर्डर, क्या सब तुम्हें पता है, तुम्हारे अंडर हुआ है काम। ओ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हर डाइंग, पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड, मेरे को उसके मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि एक हल्के से जुकाम की वजह से लोग मरते नहीं हैं। शी विल बी टेकन टू गुड केयर ऑफ, उसकी अच्छी देखभाल की जाएगी। एज लॉन्ग एज शी स्टेज देयर, जब तक वो वहाँ पे रुकी हुई है। इट्स ऑल वेरी वेल, आई वुड गो एंड सी हर इफ़ आई कुड हैव द कैरेज, सब कुछ ठीक होगा, मैं ज़रूर जाती अगर कोई जाने का रास्ता होता, यानी कुछ गाड़ी या कुछ ऐसा कुछ होता जिसके थ्रू वो जा पाती। Elizabeth, feeling really anxious, was determined to go to her, though the carriage was not to be had. जो उसकी सिस्टर थी एलिजाबेथ, जेन की सिस्टर, वो वाकई में बहुत परेशान थी, एंड शी हैड मेड अप हर माइंड टू गो टू हर, उसने अपना मन बना लिया था कि वो जाएगी, उससे मिलेगी भी, हालांकि उसको ये पता था कि कोई जाने का गाड़ी रास्ता नहीं है। एंड शी वॉज नो हॉर्स वूमन, वो एक हॉर्स वूमन भी नहीं थी जिसे हॉर्स चलाना आता हो, हॉर्स राइडिंग आती हो। Walking was her only alternative. Walking was the last option for her. She declared her resolution. Now she declared her decision that she would go and meet Jane. How can you be so silly, cried her mother, as to think of such a thing in all this dirt? You will not be fit to be seen when you get there. तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो, उसकी मदर कहती है
कि इतना रास्ता, गंदा रास्ता जिसमें इतनी धूल मिट्टी है, तुम उस पर जाओगी और जब तुम वहाँ पहुँचोगी तो तुम्हारी हालत भी देखने लायक होगी। आई शैल बी वेरी फिट टू सी जेन विच इज़ ऑल आई वॉन्ट। यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेन से मिलने के लिए, बस मैं यही, मुझे बस यही बताएं। इज़ दिस ए हिंट टू मी लिज़ी, said her father, to send for the horses? Lizzie, is this a hint to me, Lizzie? said her father, to send for the horses? Yes. और उसके फादर कहते हैं कि क्या ये हिंट है तुम्हारे ये कहने का कि मैं हॉर्सेस को लेके आऊँ? No indeed, I do not wish to avoid the walk. The distance is nothing when one has a motive only 3 miles. वो कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मैं अपनी वॉकिंग को अवॉइड भी नहीं करना चाहती। 3 माइल्स डिस्टेंस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर हमारा मोटिव है, हम एम्बिशियस हैं, हम इसको सिर्फ 3 माइल्स लेके चलेंगे। आई शैल बी बैक बाय डिनर, मैं रात के खाने तक आ जाऊँगी। आई एडमायर द एक्टिविटी ऑफ योर बेनिवोलेंस, ऑब्जर्व मैरी। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी ऑफ बेनिवोलेंस यानी एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं तुम्हारी इस काम के लिए प्रशंसा करती हूँ, तुम्हारी काइंडनेस के लिए। ऑब्जर्व मैरी, जो उसकी सिस्टर थी। बट वेरी इम्पल्स ऑफ फीलिंग शुड बी गाइडेड बाय द रीज़न एंड इन माई ओपिनियन एक्सर्शन शुड ऑलवेज बी इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अब वो कहती है कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसके पीछे रीज़न होने चाहिए, और मेरी ओपिनियन में एक्सर्शन यानी, यहाँ देखिए आपका मतलब, एक्सर्शन शुड ऑलवेज बी इन प्रोपोर्शन टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड में द अमाउंट ऑफ ट्रबल टेकन शुड बी इक्वल टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जितना हम एक्सर्शन कर रहे हैं हमें उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए, यानी अगर तुम जा रही हो तो तुम पहुंचने भी चाहिए। वी विल गो एज फार एज मैरिटन विद यू, सेड कैथरीन एंड लाइडिया। अब उसकी जो 2 सिस्टर है वो कहती है कि हम तुम्हारे साथ मैरिटन तक साथ देंगे। मैरिटन इज ए प्लेस। एलिजाबेथ एक्सेप्टेड देयर कंपनी एंड द 3 यंग लेडीज सेट ऑफ टुगेदर। एलिजाबेथ ने उनकी कंपनी एक्सेप्ट की और तीनों लेडीज़ ने एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। इफ़ वी मेक हे, सेड लाइडिया, इफ़ वी मेक हेस वॉकड अलोंग परहैप्स वी मे सी समथिंग ऑफ कैप्टन कार्टर बिफोर ही गोज। अगर हम थोड़ा जल्दी चलें तो हम कैप्टन कार्टर की गाड़ी कुछ मिल सकती है। इन मैरिटन दे पार्टेड, लेकिन मैरिटन में जाकर वो सब अलग हो गई, उन्होंने वहाँ तक उसका साथ दिया। The 2 youngest repaired to the lodging of one of the officer wives and Elizabeth continued her walk alone. दोनों सिस्टर्स ने अपने घर की तरफ वापस रास्ता बना लिया और एलिजाबेथ अकेली चल दी। क्रॉसिंग फील्ड आफ्टर फील्ड एट ए क्विक पेस, jumping over stiles and springing over puddles with impatient activity, and finding herself at last within the view of the house with weary ankles, dirty stockings and a face glowing with the warmth of exercise. एलिजाबेथ ने अपनी वॉकिंग कंटिन्यू रखी, फील्ड के बाद फील्ड क्रॉस करती गई, जंपिंग ओवर स्टाइल्स, स्टेप्स मेड ओवर ए फेंस और ए गेट। ओके, यानी कभी फेंस आ जाती है दीवार के ऊपर, गेट के ऊपर से जाती हुई, अपने पैर जल्दी जल्दी बढ़ाती हुई, और लास्ट में वो उसने अपने आप को कहाँ पाया? द व्यू ऑफ द हाउस। उसे उस घर का व्यू दिख गया जहाँ उसे जाना था, यानी नीदरलैंड में मिस्टर बिंगले का घर। विद वियरी एंकल्स, डर्टी स्टॉकिंग्स एंड अ फेस ग्लोइंग विद द वार्मथ ऑफ एक्सरसाइज। उसका फेस बहुत ग्लो कर रहा था क्योंकि वो बहुत दूर से वॉकिंग करके आई थी। एक्सरसाइज की ग्लो उसके चेहरे पर अलग से ही दिख रही थी। She was shown into the breakfast parlor where all but Jane were assembled, and where her appearance created a great deal of surprise. वो जब पहुंचती वहाँ पे तो ब्रेकफास्ट का टाइम था, सब असेंबल्ड थे जेन को छोड़कर, और सब उसको देखकर बहुत सरप्राइज फील करते हैं। That she should have walked 3 miles so early in the day in such dirty weather and by herself. सब इसी बात को लेकर परेशान थे कि वो अकेली, उसने इतना लंबा डिस्टेंस कंप्लीट किया इतना ख़राब मौसम में अकेली। Was almost incredible to Mrs. Hurst and Miss Bingley. Mrs. Hurst is for Caroline and Miss Bingley is for another sister.
तो they were both very surprised, and Elizabeth was convinced that they held her in contempt for it. She was received, however, very politely by them, and in their brother's manners there was something better than politeness. There was good humor and kindness. सबने बहुत उसको अच्छे से पोलाइटली रिसीव किया और अच्छा खासा उनके बीच में आपस में मजाक भी चला. मिस्टर डार्सी सेड वेरी लिटिल एंड मिस्टर हर्स्ट नथिंग एट ऑल. मिस्टर डार्सी जो कि चार्ल्स बिंगले के फ्रेंड थे और उन्होंने बहुत कम बातचीत की और मिस्टर हर्स्ट ने तो शायद कुछ बोला ही नहीं. द फॉर्मर वॉज डिवाइडेड बिटवीन एडमायरेशन ऑफ द ब्रिलियंसी विच एक्सरसाइज हैड गिवन टू हर कॉम्प्लेक्शन एंड डाउट एज to the occasions justifying her coming so far alone. अब जो फॉर्मर यानी मिस्टर डार्सी उसको एडमायर कर रहे थे उसकी ब्यूटी रादर देन हर ब्रिलियंसी. और जो लेटर मीन्स मिस्टर हर्स्ट वो सिर्फ अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे. हर इंक्वायरीज आफ्टर हर सिस्टर वर नॉट वेरी फेवरेबली आंसर्ड. जब उसने अपनी सिस्टर जेन के बारे में बातचीत की और पूछा बट उसको आंसर फेवरेबल नहीं मिला. मिस बेनेट हैड स्लेप्ट इल एंड दो अप वॉज वेरी फीवरिश एंड नॉट वेल इनफ टू लीव हर रूम. फिर मिस बेनेट कौन है? जेन के लिए यूज़ किया कि भाई वो तबीयत ठीक नहीं है उनकी, बीमार है, वो सो रही है और उनको बुखार जैसा फील हो रहा था इसलिए वो अपने रूम से बाहर आने में असमर्थ हैं. Elizabeth was glad to be taken to her immediately, and Jane, who had only been withheld by the fear of giving alarm or inconvenience from expressing in a note how much she longed for such a visit, was delighted at her entrance. जेन जो कि ये नहीं चाहती थी कि कोई उसकी तबीयत को सुनकर परेशान हो, बट वो उनसे मिलना भी चाहती थी और ऐसे में जब एलिजाबेथ का आना हुआ तो वो बहुत खुश हुई. She was not equal, however, to much conversation, and when Miss Bingley left them together, could attempt little besides expression of gratitude for the extraordinary kindness she was treated with. Elizabeth attended to her silently. जब मिस बिंगले ने उन दोनों को अकेले छोड़ दिया, could attempt little besides expression of gratitude for the extraordinary kindness. जेन अपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी एलिजाबेथ के लिए. एलिजाबेथ ने उसको बहुत साइलेंटली अटेंड किया. व्हेन ब्रेकफास्ट वाज ओवर दे वर जॉइंड बाय द सिस्टर. जब ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया तो सबने उन सिस्टर्स को ज्वाइन कर लिया. एंड एलिजाबेथ बिगिन टू लाइक देम हरसेल्फ. एलिजाबेथ ने भी उनके साथ उनको तरह ज्वाइन किया. व्हेन शी सॉ हाउ मच अफेक्शन एंड सॉलिसिट्यूड दे शोड फॉर जेन. जब उसने देखा एलिजाबेथ ने कि सभी लोग बिंगले के सिस्टर्स भी सब बहुत अच्छे से कितना अच्छा अफेक्शन दिख रहा है उनकी आंखों में, कितनी अटेंशन कितनी केयरिंग दिख रही है, तो वो भी उनको बहुत लाइक करने लगी. यानी एलिजाबेथ ने जब देखा कि बिंगले फैमिली में कितना अफेक्शन और पोलाइटनेस है जेन के लिए, तो शी बिगन टू लाइक देम हरसेल्फ. वो भी उनको पसंद करने लगी. द एपोथेरेसी केम. एपोथेरेसी जो दवाइयाँ वगैरह देते हैं. एपोथेरेसी इज़ हेयर अ पर्सन हु मेक्स एंड सेल्स मेडिसिन, परहैप्स अ डॉक्टर टाइप. Apothecary came and having examined his patient said, as might be supposed, that she had caught a violent cold and that they must endeavour to get the better of it. Advised her to return to bed and promised her some draughts. Draughts means medicinal drinks like tea, काढ़ा, these are all the things. जब एपोथेरेसी वहाँ पे आते हैं और उनको अपने पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तब वो बताते हैं कि उसको बहुत जुकाम हुआ है, कोल्ड हुआ है और उसे अपने बेड पे ही रहना चाहिए और एडवाइस करते हैं कि कुछ ड्रिंक्स लें, मेडिकल ड्रिंक्स. द एडवाइस वॉज फॉलोड रेडिली फॉर द फेवरिश सिम्टम्स इंक्रीज एंड हर हेडेक एक्यूटली. जब ये सारी एडवाइस फॉलो की गई, जब फेवरिश सिम्टम इंक्रीज हुआ, हेडेक भी था. एलिजाबेथ डिड नॉट क्विट हर रूम फॉर अ मोमेंट, nor were the other ladies often absent. The gentlemen being out, they had in fact nothing to do elsewhere. किसी ने भी उसको अकेला नहीं छोड़ा. एलिजाबेथ तो रूम से बाहर गई नहीं. बाकी लेडीज़ भी अदर लेडीज़ ऑफन एब्सेंट, बाकी लेडीज़ बीच बीच में एब्सेंट रहीं.
जेंटलमैन बीइंग आउट, अब जो मैन थे वो तो बाहर थे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 3, जब शाम के 3 बज गए, एलिजाबेथ फेल्ट दैट शी मस्ट गो, एलिजाबेथ को लगा कि उसे जाना चाहिए। एंड वेरी अनविलिंगली सेड सो, और ना चाहते हुए भी उसने कहा। मिस बिंगले ऑफर्ड हर द कैरेज एंड शी ओनली वांटेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट व्हेन जेन टेस्टिफाइड सच कंसर्न इन पार्टिंग विद हर। मिस बिंगले ने कैरेज ऑफर किया, यानी गाड़ी, एंड शी ओनली वांटेड अ लिटिल प्रेसिंग टू एक्सेप्ट इट, और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। व्हेन जेन टेस्टिफाइड शोड ग्रेट रिलक्टेंस टू पार्ट विद हर, जब सबने नोटिस किया कि जेन वॉज नॉट फीलिंग गुड फॉर बीइंग पार्टी विद, यानी अपनी बहन से अलग होने के लिए वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, दैट मिस बेंगले वॉज ऑब्लाइज्ड टू कन्वर्ट द ऑफर ऑफ द चेज टू एन इन्विटेशन टू रिमेन एट नीदरलैंड फॉर द प्रेजेंट। तब मिस बेंगले ने ये फील किया, रियलाइज़ किया कि उसकी प्रेजेंस वहाँ पर कितनी ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने इनवाइट किया एलिजाबेथ को नीदरलैंड में ही स्टे करने के लिए। एलिजाबेथ मोस्ट थैंकफुली कंसेंटेड एंड ए सर्वेंट वॉज डिस्पैच्ड मीन्स सेंट टू। एलिजाबेथ ने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, और एक सर्वेंट को भेजा गया लॉन्गबोर्न जहाँ पर बेनेट फैमिली रहती थी, जेन और एलिजाबेथ की फैमिली, उनके पास सर्वेंट को भेजा गया टू एक्वेंट द फैमिली विद हर स्टे एंड ब्रिंग बैक अ सप्लाई ऑफ क्लॉथ, उनको ये बताने के लिए कि एलिजाबेथ भी वहीं स्टे करेगी और उनके लिए कुछ कपड़े लाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी कैन सी जेन सिस्टर फेल्ट अनईजी फॉर हर। जेन्स की सिस्टर क्यों अनईजी फील कर रही थी जेन के लिए, क्योंकि दे वर अफ्रेड दैट शी वुड गेट वेट, कि वो भीग जाएगी, बारिश आने लगेगी। जेन कुडंट कम बैक, जेन वापस नहीं आ सकती थी, बिकॉज इट हैड नॉट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुकी ही नहीं। जेन्स मदर डिडंट नो टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या नहीं जानती थी जेन्स मदर सुबह तक भी, कि हाउ वेल हर प्लान हैड वर्क, उनका प्लान कितना सक्सेसफुल रहा। द नोट फ्रॉम नीदरलैंड हैड न्यूज़ अबाउट जेन्स इलनेस, नोट जो आया था उसमें जेन्स की इलनेस के बारे में बताया गया था। जेन वॉज सपोज टू रिटर्न टू हर ओन होम। I hope the chapter is clear. Now students, we should know what does these characters reflect in the story. You can see Mr. Bennet, who was irresponsible, who had not saved enough money for his daughters to spend rest of the life for better end. And Mrs. Bennet, she was so ambitious. She was busy making plans of her daughters of getting married to the rich persons. Now we can say Mr. Bingley, Mr. Charles Bingley, he was a kind and polite man. Okay, the sisters were very good, they were also polite and kind. Mr. Darcy was friend, he was also a poor person. He was a poor person like Jane and Elizabeth, but he was a good friend of Mr. Charles Bingley. Okay, so these were all about the characters of the story. I hope the chapter is clear to you all. You can see I have added answers of these questions and back exercise in this video. You can take a screenshot here and can write the answer in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day.